So Jai Hind to everyone. In the lecture series of the artificial intelligence, in the previous lecture we have started about the searching algorithms, and we had seen that in the searching algorithms we are basically having the two categories of the searching, that is the uninformed search and the informed search. Uninformed search, which is also called your blind search, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा blind search means मुझे नहीं पता, मुझे गोल पता है नोड, मेरी गोल नोड कौन सी है, मेरी स्टार्टिंग नोड कौन सी है, लेकिन किस रास्ते से मुझे वहां तक पहुंचना है मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. ब्लाइंडली आई एम मूविंग फ्रॉम दैट, ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू मैं मूव कर रही हूँ. Randomly I am reaching for searching of my destination. Whereas in informed search we are having certain information of the domain, जो मैं डिटेल में आगे के लेक्चर सीरीज में कवर अप करूंगी. बट for somewhat information we are having the heuristic values, we are having a certain domain values through which I can acquire the knowledge, I can acquire the domain knowledge, और जिसकी हेल्प से I can reach my destination with a less time and less cost. So in the previous lecture we had covered the two algorithms of the uninformed search. I'll show you again about the graph, that is the presentation, the search algorithms. Uninformed ने हमें जो cover up करनी है, that is the breadth first search, the uniform cost search, the depth first search, the depth limited search, the iterative deepening search, and your bidirectional search. Where in informed search we have to cover up the two algorithms, BFS and the A* search. So in the previous lecture series we have covered the BFS part, and we had also covered your uniform cost search. So next we'll starting with the covering with the depth first search. So depth first search, as the name declares, the traversal is been done through the depth first searching. That means the depth wise searching it is we have been doing. So it's mentioned here, the DFS, that is the depth first traversal, is a recursive algorithm for searching all the vertices of the graph or tree data structure. So definitely हम हर vertex के पास traverse करेंगे, डेप्थ वाइज हम सर्च करेंगे. मैंने अगर एक साइड से अगर मैंने स्टार्ट करा, जब तक वो मैं एंड नोड तक नहीं आती तब तक वो डेप्थ वाइज अंदर जाता जाएगा until द एंड नोड. उसके बाद वो वापस आके नेक्स्ट अपने डेप्थ वाइज वो सर्चिंग को स्टार्ट करेगा. ठीक है बेटा. सो दैट इज व्हाट्स मेंशन्ड हियर. इट इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ और ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ट्रैवर्सल मींस विजिटिंग ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ. डेफिनेटली मुझे हर जो नोड है उससे पहले मुझे ट्राइवर्स करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी डेस्टिनेशन नोड तक पहुंच सकती हूँ. और जो डेटा स्ट्रक्चर आपका ये यूज करता है, इट इज सिंपली यूजिंग द लीफो पैटर्न. व्हाट इज लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट. हमने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में देखा था बीएफएस में हम यूज करते हैं फीफो पैटर्न, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दैट इज योर क्यू. और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डीएफएस में स्टैक, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, सो स्टार्टिंग विद द एल्गोरिथम पार्ट, इट सेज दैट स्टार्ट बाय पुटिंग any one of the graph vertices on the top of the stack. यानी कि जहां से मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ अपनी सर्चिंग को, जो मेरी रूट नोड है वो नोड को मैंने लिया और मैंने उसको स्टैक में सिंपली मैंने पुट कर दिया. Now take the top item of the stack and add it to the visited list. जो मैंने आपको बताया था BFS में भी कि आपके पास दो कैटेगरीज होती है, विजिटेड एंड नॉन विजिटेड. तो विजिटेड की कैटेगरी में कौन सी होगी? जहां पर मैं ट्राइवर्सिंग कर रही हूं. तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिक करा, फर्स्ट वर्टेक्स को मैंने पिक करा और उसको मैंने विजिटेड लिस्ट के अंदर डाल दिया. Further, it is saying that create a list of the vertex adjacent nodes, add the one which are not in the visited list to the top of the stack. Definitely जो मेरे adjacent उसके vertex है वो मैं लूंगी, मैं उसको put करूंगी लिस्ट के अंदर और definitely one by one from the stack उसको मैं pop करती चली जाऊंगी. Now keep repeating steps 2 and 3 until the stack is empty. Simply how the stack is working. You have already read in data structures and DAO also. So I'll take a simple example for that. Definitely जैसे हमने BFS में एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने BFS में हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही हम DFS का एग्जाम्पल लेंगे. ये भी वही आपका सेम ग्राफ है. इसमें आपके पास 5 नोड्स हैं. डेफिनेटली अब इन 5 नोड्स को आप देखेंगे हमने, क्योंकि स्टैक में हमें वैल्यूज को पुट करना है वन बाय वन. विल स्टार्ट विद द इनिशियल नोड ऑफ द 0, जिसको मैंने विजिटेड की कैटेगरी में मैंने पुट करा. मैंने 0 मैंने विजिटेड में डाल दिया. ठीक है, मैंने कहा आपका ये डेप्थ वाइज काम करेगा. तो पहले वो आपका 0 जो है वो आपका 1 के पास आएगा. मेरा 1 यहां पर आया और मेरा 1 उसके बाद पॉप होके आगे चला गया विजिटेड लिस्ट के अंदर. अगर मान लीजिए मेरे पास इसके आगे यहां पर कोई और एलिमेंट होता है इसके साथ अंदर, तो वो पहले यहां पर जाता. बट यहां पर अभी मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए वो वापस जाएगा और वो यहां से ट्राइवर्सल स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो मेरे पास ये जो वैल्यूज है वो है आपकी 2 and 3 एंड डेफिनेटली 2 और 3 के बाद मेरे पास कौन सी वैल्यू? मेरे पास 4 है. अगर मैं डेप्थ वाइज की बात करती हूँ तो मेरे जो इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स थे वो मैंने पुट करे 2 and 3 स्टैक के अंदर. लेकिन डेफिनेटली जब मैं डेप्थ वाइज विजिट कर रही हूँ स्टैक के, तो डेफिनेटली मेरे पास जो वैल्यूज है वो है आपके पास 4, क्योंकि मैं डेप्थ वाइज काम कर रही हूँ. तो पहले मेरा जो है वो 4 वैल्यू आएगी, क्योंकि इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो मेरा ये जो 4 है
वो पॉप होके पहले आपके यहाँ चला जाएगा विजिटेड लिस्ट के अंदर और उसके बाद एंड में जाएगा आपका 3। तो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर। पहले आपका 0 से 1, उसने पहले ये ट्राइवर्स करा, फिर उसने आपका ये ट्राइवर्स करा, फिर उसने आपका ये ट्राइवर्स करा। डेप्थ वाइज वी आर ट्राइवर्सिंग, रिमेंबर दैट। चाहे आपके 100 ऑफ नोड्स भी क्यों ना हो, अगर मैं यहां बात करूं, यहां ही आपका इनिशियली बहुत सारे नोड्स आपके नीचे प्रेजेंट हैं, जब तक मेरी पूरा आपका ट्री ट्राइवर्स नहीं होगा तब तक वो एक ही लेवल में ही उस तरफ ही आपका डाउनवर्ड ही वो ट्राइवर्स करता चला जाएगा। जब वो पूरी आपकी ट्राइवर्सिंग पूरी होगी तभी वो आपके नेक्स्ट नोड पे जाकर ट्राइवर्स करेगा। एंड रिमेंबर दैट इट इज ओनली फॉलोइंग द स्टैक नोड। ओके, सो that is the example of a DFS. Now we are moving on to the depth limited search. Depth limited search क्या कहता है बेटा? It is the algorithm which is similar to the DFS. Depth first search की तरह ही वो काम करता है with a predetermined limit. उसमें हम क्या करेंगे, मुझे पता है, देखो क्योंकि बेटा अगर हमारे पास 100 ऑफ नोड्स हैं और मुझे पता है कि डेफिनेटली मैं क्या करूंगी, उसमें कुछ पार्ट्स में क्रिएट कर दूंगी। मैंने बताया अगर मेरे पास 100 लेवल्स तक की मेरे पास नोड्स प्रेजेंट है, मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि मैं एक लिमिट तक ही उस ट्री के अंदर जाऊंगी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मैंने एक लिमिट लगा दी कि मैं 5 लेवल तक ही मैं उसको ट्राइवर्स करूंगी डेप्थ वाइज, और उसके आगे मैं ट्राइवर्सिंग नहीं करूंगी। So I'm setting certain limit. It is just similar to the DFS, but yes, we are adding one point, and that is we are setting a limit in that. Okay, beta. So that is what is mentioned here. The depth limited search algorithm is similar to the DFS with a predetermined limit. So depth limited search can solve the drawback of the infinite path of the DFS. क्योंकि infinite path था मेरे पास, उसको मुझे reduce करना था, ये मेरा drawback था DFS का, by setting the limit in that. So in this algorithm, the node at the depth limit will treat as it has no successor nodes further. मैंने एक लिमिट लगा दिया और हम ये मान के चल रहे कि उसके आगे जितने भी नोड्स हैं वो मेरे सक्सेसर नोड्स मेरी प्रेजेंट ही नहीं है। हम ये मान के चल रहे मेरा ट्री वहीं पर ही खत्म हो रहा है। ठीक है बेटा। डेप्थ लिमिटेड सर्च कैन बी टर्मिनेटेड विद 2 कंडीशंस ऑफ फेलियर। 2 कंडीशन आपके फेलियर की अगर हो सकती है। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू। इट इंडिकेट्स दैट प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके अंदर सॉल्यूशन है ही नहीं, तब तो आपकी वो एल्गोरिथम फेल कर जाएगी। इसलिए अगर मेरी गोल नोड उसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं डेफिनेटली कि वो मेरा फेलियर है एल्गोरिथम। या कट ऑफ फेलियर वैल्यू, क्योंकि मैंने एक लिमिट सेट कर दी थी और मान के हम चलते हैं कि हम यही मान के चल रही हूँ कि जितना मैंने लिमिट सेट करा उसमें मुझे मेरा गोल नोड मिल ही जाएगा। बट अगर उसके अंदर मेरी गोल नोड प्रेजेंट नहीं होगी तो आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू सर्च माई गोल नोड। So that is also a cutoff failure value. So it defines no solution for the problem without a given depth limit. ठीक है बेटा, clarity enough for that part. So we'll see the example for that. Advantages की हम बात करते हैं। Depth limited search is memory efficient, क्योंकि एक बड़े ग्राफ को मैंने छोटे पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक लिमिट सेट कर दी मैंने, तो डेफिनेटली जो मेरी मेमोरी है वो मेरी कम हो गई है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, इट हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीटनेस एंड कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया 2 फेलियर आपके अगर हो सकते हैं, या तो उसके अंदर आपकी सॉल्यूशन है ही नहीं, या जहां पर मैंने क्योंकि कट ऑफ लगाया उसके बाद वो मेरा सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो वो मेरा जो है वो इश्यू क्रिएट करेगा, टर्मिनेट मेरा पहले हो जाएगा। दैट इज अ डिसएडवांटेज। इट इज, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीटनेस की कैटेगरी में भी कई बार हम रख लेते हैं। इट मे नॉट बी ऑप्टिमल इफ द प्रॉब्लम हैज मोर देन 1 सॉल्यूशन। हो सकता है कि मेरी वो जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मेरे गोल नोड का रास्ता है वो 2 भी हो सकते हैं। बट जैसे ही माने, क्योंकि मैं डेप्थ वाइज में सर्च कर रही हूँ और मैं ये मान के चल रही हूँ मैं इस तरफ से आई, जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, आई सिंपली डिस्कस एन एग्जांपल फॉर दैट। हम गोल नोड की बात करते हैं। मान लीजिए ये मेरी गोल नोड है, ये मेरी स्टार्ट नोड है। ठीक है बेटा, क्योंकि हम डेप्थ वाइज हम बात कर रहे हैं। डेप्थ वाइज जाने के बाद मैं यहां से यहां गई, फिर उसके बाद मैं यहां से यहां गई। ठीक है बेटा, तो डेफिनेटली पहले मुझे यही पूरा ट्राइवर्स करना पड़ा, फिर मुझे यहां पर आके ट्राइवर्सिंग करनी पड़ी, तब जाके मैं अपने गोल नोड पर पहुंची। लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन ये भी था बेटा कि मैं डायरेक्टली यहां से यहां भी ट्राइवर्स कर सकती थी फ्रॉम सोर्स नोड टू गोल नोड, और सिर्फ मेरे पास जो पाथ कॉस्ट है, मान लीजिए मैं 1 की अगर कॉस्ट मानती हूँ, विद इन द 2 कॉस्ट आई कैन रीच सिंपली माई गोल नोड, isn't it? तो डेफिनेटली वो मुझे सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर रहा है, बट मे बी पॉसिबल कि वो जो सॉल्यूशन है वो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा। Getting my point? So that is also a disadvantage for that part.
तो दैट इज सिंपल एग्जांपल फॉर दैट डेप्थ लिमिटेड सर्च। मैंने आपको बताया है कि हम एक लेवल सेट कर देते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि मुझे इसके आगे काम ही नहीं करना है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करती हूँ, SABCDIJEFJH, definitely we are having four levels, of course, level 0, 1, 2 and 3, isn't it? और मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मैं आपका जो लेवल है वो लेवल 2 तक मैं सेट कर रही हूँ, मैं एक लिमिट लगा रही हूँ, इस लिमिट के आगे मेरा ग्राफ ट्राइवर्स नहीं करेगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि विद इन दिस ग्राफ मेरी जो वैल्यू है वो इसी में ही प्रेजेंट है आपकी, ठीक है। तो सिंपली ग्राफ में क्या हुआ, आपका S से लेकर उसकी ट्राइवर्सिंग यहां तक हुई, फिर यहां पर ट्राइवर्सिंग हुई, फिर उसके बाद वो यहां पर गया तो यहां से आपका यहां ट्राइवर्सिंग हुई, यहां ट्राइवर्सिंग हुई, और उसके बाद आपकी यहां पर ट्राइवर्सिंग हो गई। वो नीचे गया ही नहीं, इट हैज लेफ्ट आउट ऑल दीज नोड्स which is definitely a memory efficient, and definitely I found my goal node here itself. So getting my point? So that is the benefit of depth limited search, but yes, a drawback also is that कि हो सकता है कि definitely कि मेरा जो goal node है वो नीचे कहीं होता तो वो मुझे solution मिलता ही नहीं. It is a failure of my algorithm, isn't it? So it's a risky part. Next is the iterative deepening depth first search. The iterative deepening algorithm is a combination of DFS and BFS algorithm. ये दोनों का combination है. इसमें हम DFS का भी concept लेंगे, इसमें हम BFS का भी concept लेंगे. This such algorithms find out the best depth limit and does it by gradually increasing the limit until a goal is found. Definitely वो जो आपकी best depth limit है उसको identify करेगा और उसके हिसाब से वो gradually increase करके अपने goal node तक वो पहुंचेगा. The algorithm performs DFS up to certain depth limit and it keeps increasing the depth limit after each iteration until the goal node is found. ठीक है, वो डेप्थ लिमिट के अकॉर्डिंग वो सेट करेगा अपनी वैल्यूज को और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आइटरेशन को आगे फर्दर वो मूव ऑन करता चला जाएगा. ठीक है बेटा. द सर्च एल्गोरिथम कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ द BFS एंड द DFS मेमोरी एफिशिएंसी. डेफिनेटली क्योंकि मैंने कहा मुझे मेमोरी एफिशिएंट भी करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग भी मुझे काम करना है, इसीलिए हमने इन दोनों एल्गोरिथम्स को मर्ज करके एक सिंपल एल्गोरिथम बनाई, दैट इज अ आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च. So that is useful uninformed search when search space is large and depth of the goal node is unknown. क्योंकि uninformed है definitely, तो उस केस में ये आपका एल्गोरिथम काम करता है. एडवांटेज की हम अगर बात करते हैं, इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ DFS एंड डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ फास्ट सर्च एंड मेमोरी एफिशिएंसी ऑफ कोर्स. और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करती हूँ, द मेन ड्रॉबैक ऑफ IDDFS इज दैट इज आइटरेटिव डीपनिंग इज इट रिपीट्स ऑल द वर्क ऑफ द प्रीवियस फेज. वो बार बार रेपिटेटिव वो काम करता चला जाता है, जिसके कारण जो है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है. तो अगर मैं सिंपल से आपके एग्जांपल की हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है, मैं लेवल वाइज लेवल मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा. मैंने सेट कर दिया कि मेरी एक आइटरेशन तक मेरी एक वैल्यू है, इसके आगे मेरे पास मेरा ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है. मैंने सेट कर दिया कि मुझे मेरा ट्रैवर्सिंग जो होगा वो मेरा यहीं तक ही होगा. आइटरेटिव डीपनिंग है ये, यानी आई सेटिंग सर्टेन आइटरेशन. पहले मैं A तक गई, मुझे A में मेरा गोल नोड मिला, नहीं मिला मुझे, ठीक है, मैं फिर से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करती हूँ. फिर मैं नेक्स्ट लेवल पर गई, मैंने कहा मैं नेक्स्ट लेवल पर सर्च करूंगी, तो मैंने आइटरेटिव डीपनिंग करा. पहले मैं A पे गई, फिर मैं B पे गई, फिर मैं इसके बाद में C पे गई. मुझे यहाँ पर मेरी गोल नोड मिली, नहीं मुझे मेरी गोल नोड नहीं मिली, फिर छोड़ते हैं. मैं फिर से इनिशियल फेज से स्टार्ट करती हूँ. फिर मैं गई, मैं वहां पे मैं A पे गई, मैं B पे गई, मैं C पे गई, मैं B पे गई, मैं D पे गई, क्योंकि मैंने कहा BFS और DFS का कॉम्बिनेशन है, आइटरेशन भी है मेरे पास. मैं A पे गई, मैं B पे गई, मैं D पे गई, फिर उसके बाद सिंपली हम E पे गए, फिर हम यहाँ से यहाँ आए, फिर हम यहाँ से यहाँ आए, ABDECFG. तो यानी कि मैंने आइटरेशन भी सेट कर दी इसके अंदर और DFS का जो बेनिफिट है वो भी यूज करा, BFS का बेनिफिट है मैंने वो भी यूज करा. दैट इज द आइटरेशन पार्ट फॉर दैट. नेक्स्ट इज द बाइडायरेक्शनल सर्च, दैट इज द लास्ट सर्च ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च. It is a search where, unlike BFS and DFS, the search begins simultaneously from source vertex and goal vertex and ends when the two searches meet somewhere in between the graph. क्योंकि सिंपली आपका नाम सजेस्ट कर रहा है बाई डायरेक्शनल सर्च का. बाई डायरेक्शनल सर्च हम क्या कहती हैं, इट इज अनलाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च. द सर्च बिगिन साइमल्टेनियसली, यानी कि BFS भी करेगा, DFS भी करेगा, साइमल्टेनियसली वो दोनों काम करेंगे from source vertex to the goal vertex and ends when the two searches meet somewhere in between in the graph. So this is thus especially used for getting results in fraction of the time taken by both DFS and your FS search.
तो डेफिनेटली इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, आपको लाइफ टाइम याद भी रहेगा बेटा। बाय डायरेक्शनल सर्च क्या है, आप ये मान के चलिए आपको अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है, ठीक है बेटा, आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स हैं, बीच में कैंटीन, एक सेंटर पॉइंट है। आपने कहा जो आपका फ्रेंड है वो आपका किसी और ब्लॉक में है, वो फर्स्ट ब्लॉक में है, आप सेकंड ब्लॉक में है। मिडल ऑफ दैट इज इन द सेंटर इज अ कैंटीन, ठीक है। आप उस फर्स्ट ब्लॉक से उस कैंटीन की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका जो फ्रेंड है वो भी उस मेन जो आपके जिस ब्लॉक में वो प्रेजेंट है, वो आपका जो फ्रेंड है वो भी आपका कैंटीन की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि आप दोनों ही कैंटीन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेंटर पॉइंट में आप पहुंचे और वहां पर आप लोगों ने आके मीट कर लिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलना है तो आप उस बिल्डिंग से उसकी उस बिल्डिंग तक जाके आप उससे मिल रहे हैं। नो, डेफिनेटली दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका टाइम भी कम लगे, इसलिए मुझे हमारा आउटकम क्या है कि मिलना है, सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का। तो वी कैन से दैट कि आपका गोल नोड भी आपके पास चल के आ रहा है और जो आपकी स्टार्ट नोड है वो भी आपके पास आपके चल के आ रही है, ठीक है बेटा। जहां पर भी आपका, तभी यहां बेटा यह मेंशन है साइमल्टेनियसली, so from source vertex and the goal vertex and ends when the searches meet somewhere in between the graph। जहां पर भी वो दोनों मिलेंगे एक साथ, वहां पर मैं मान के चलती हूं कि जो मेरा मीटिंग पॉइंट है वही है और वहां मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। So the search from the initial node is forward search while that from the goal node is the बैकवर्ड सर्च। आपके इनिशियल से होगी, फॉरवर्ड सर्च होती रहेगी, और जो गोल नोड है वो आपका बैकवर्ड सर्चिंग करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपल एग्जांपल से, आप फर्स्ट ब्लॉक में हैं, आप वहां से आ रहे हैं फॉरवर्डिंग करते हुए कैंटीन की तरफ, और जो आपका फ्रेंड है वो आपका उस बिल्डिंग से बैकवर्ड मूव कर रहा है कैंटीन की तरफ, एंड इट इज मूविंग फॉर द बैकवर्ड सर्चिंग पार्ट। ओके फाइन। सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द हेरिस्टिक सर्च, मीनिंग फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ टू गोल ऑप्टिमली। क्योंकि हेरिस्टिक हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, डेफिनेटली इट इज कैटेगराइज्ड इन द अनइन्फॉर्म्ड सर्च, क्योंकि डेफिनेटली उस बिल्डिंग से कैंटीन तक आने के लिए रास्ते भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जहां पर भी हम वो दोनों मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे, डेफिनेटली उसको मैं मान लूंगी कि मुझे वहां सॉल्यूशन मेरा मिल जाएगा। पर कोशिश हम ये करेंगे कि हम हेरिस्टिक सर्च जो है आपकी, जो समवट कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू हम शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करके हम सॉल्यूशन तक हम पहुंच सके, ठीक है बेटा। So bidirectional search algorithm, it refers to the concept of finding the shortest path from the current node in the graph to the goal node। क्योंकि मैंने कहा हम दोनों ही पर्सन्स आपके ट्राइवर्स कर रहे हैं एक ही तरफ, तो डेफिनेटली पाथ आपका शॉर्टेस्ट तो हो ही जाएगा, और कोशिश भी की जाएगी कि आपके शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके ही सेंटर मीटिंग पॉइंट आपका डिसाइड किया जाए। फाइन। द सर्च ऑलवेज टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू द गोल नोड। द प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अ बायडायरेक्शनल हेरिस्टिक सर्च। ओके फाइन। So the only difference being the two simultaneous searches from the initial point and from goal vertex, that is the difference क्या है आपका, दोनों टाइम simultaneous searches जो है वो initial point and from the goal vertex दोनों आपकी मूव कर रही है। The main idea behind bidirectional search is to reduce the time taken for the search drastically। Definitely टाइम कम लगेगा। जो मैंने आपको कहा, अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहे हैं, या मान लीजिए वही मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मुझे यहाँ से अगर मान लीजिए अगर किसी अपनी रिलेटिव से मिलने जाना है या फ्रेंड से मिलने के लिए मुझे जाना है, आई हैव टू रीच टू जनकपुरी, तो मैं एक सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेती हूँ, मैं एक मेट्रो स्टेशन डिसाइड कर लेती हूँ। एक काम करो, आप भी उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाओ, मैं भी उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते, दोनों मिलकर वहीं पर कंक्लूड कर लेंगे जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वही बैठ के आइडेंटिफाई कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ रीचिंग कि मैं पहले जनकपुरी पहुंचूं, मेरा टाइम मेरा जहां वो 2-2.5 घंटे में मैं पहुंचूंगी, फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगी सॉल्यूशन को, फिर मैं रिवर्ट बैक रिस्पॉन्स करूंगी। इट्स बेटर टू मीट ऑन, उनका भी टाइम लगेगा, मेरा भी टाइम लगेगा, दोनों हम करेंगे विद इन हाफ एन आवर विल रीच एट अ डेस्टिनेशन, वहां पहुंच के हम सॉल्यूशन निकालेंगे एंड रिवर्ट बैक अपने अपने घर वापस भी चले जाएंगे, ठीक है बेटा। So this happens when both search happen simultaneously from the initial node, depth or breadth first, and backwards from goal nodes intersecting somewhere in between of the ग्राफ। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि दोनों आपके एक फॉरवर्ड मूव कर रहा है, आपका एक बैकवर्ड मूव कर रहा है, जहां पर भी आपका इंटरसेक्शन होगा ग्राफ का बिटवीन दैट ग्राफ, वहां पर हम मान लेंगे कि आपका सॉल्यूशन वही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द पाथ ट्रैवर्सेस थ्रू द इनिशियल नोड थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स टू द गोल वर्टेक्स, that is the shortest path found because of this search। So definitely आपको the path traverse है initial node से intersecting point तक आपका पहुंचेगा, वो shortest path को follow up करेगा। The shortest path found is a fraction of the time taken in search by the other search algorithms। Definitely आपका time कम लगेगा, कुछ fraction of times आपका इसमें reduce हो जाएगा, ठीक है बेटा। So the algorithm says
A इज द इनिशियल नोड, हम मान के चलते हैं ये मेरी जो है वो आपकी इनिशियल नोड है, एंड O इज द गोल नोड, O मेरी जो है वो आपकी गोल नोड है, एंड H इज द इंटरसेक्शन नोड, H जो है मेरी ये जो है मेरी ये है इंटरसेक्शन नोड, ठीक है। We will start with searching simultaneously from start to the goal node and backward from goal to the start node. तो A जो है वो आपका मूवमेंट करेगा, कोशिश करेगा आपका इस तरफ मूव करने का, एंड डेफिनेटली जो आपका O है वो आपका मूव करेगा इस तरफ, isn't it? Whenever the forward search and backward search intersect at one node, then the searching stops. जहां पर भी आपका इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये है, जैसे ही ये दोनों आपके नोड्स आपके यहाँ पर मीट करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी एल्गोरिथम जो है वो सक्सेसफुल रीच हो गई है। सो ठीक है बेटा, सो आई होप आपको बाय डायरेक्शनल एल्गोरिथम क्लियर हो गई होगी, एंड लाइफ टाइम आपको क्लियर रहेगी। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, बहुत आसान तरीका है किसी भी एल्गोरिथम को याद करने का, या किसी भी पॉइंट को अगर आपको याद करना है, try to grasp, try to learn with the help of an example and take more real life examples. अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप जोड़ेंगे, कोई भी आपका पॉइंट है, कोई भी आपका एल्गोरिथम है, कोई भी आपका टॉपिक है, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। बाय डायरेक्शनल के लिए सिंपल सा एल्गोरिथम, सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। द एग्जांपल सेज दैट आपको अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है, आपका दोस्त जो है वो किसी और बिल्डिंग में है, आप किसी और बिल्डिंग में है, एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करिए कि जहां पर आपको मिल सकते हो, वो भी आपका फ्रेंड भी उस वहां तक आ रहा है, कैंटीन तक आ रहा है, द मिडिल पॉइंट इज दैट, और आप भी उस कैंटीन तक पहुंच रहे हैं। जहां आपको 15 मिनट लगते हैं उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक पहुंचने में, इट्स बेटर वो ये था कि 5 मिनट उनको लगते हैं, 5 मिनट उनको लगते हैं, और सेंट्रली वो वहां पर आके पहुंच जाते और सॉल्यूशन को निकाल लेते। तो बाय डायरेक्शनल मीन्स फ्रॉम द बोथ डायरेक्शंस द मूवमेंट इज हैपनिंग एंड वी आर कंक्लूडिंग अवर सॉल्यूशंस। क्लियर है बेटा? So thus it is possible when both the start node and the goal node are known and are unique separate from each other. Definitely अगर वो start node है, goal node known है, unique है, and they are separate from each other. Definitely. Also, other points to be noted are that bidirectional searches are complete if a BFS is used for both traversals, that is for both paths from start node till intersection and from the goal node till intersection. जो सेम पॉइंट में होता है, दोनों डायरेक्शन में आपका मूवमेंट कर रहा है, दोनों के पास इंफॉर्मेशन है आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट के, और वो आपके वहां कोशिश कर जहां पर भी इंटरसेक्ट उनका होगा वो मान के चलेंगे वो उनका सेंटर पॉइंट है। ठीक है बेटा? So these are certain references. You can follow up these books for the references of these searching algorithms. Thank you so much.